Good evening, everyone. So let's start with the today's class. And as we all know, we're going to revise a little bit about the previous classes that we have taken and the topics that we have already covered. So as I was looking at different other landforms, and I have found that we have already covered the landforms related to fluvial processes, that is जलीय प्रक्रम के बारे में हमने पढ़ा. We have seen the fluvial erosional landforms and various aspects of fluvial erosion actions: corrosion, abrasion, hydration, attrition, downcutting, lateral erosion, then river valley formation, then V-shaped valley, waterfall, rapids, potholes, gullies and rills, terraces, river meanders, oxbow lake. Then we have also seen the depositional landforms of fluvial processes. So within that we have seen the alluvial cones and alluvial fans. We have seen delta, types of different delta like arcuate, Bird's foot delta and Puspate delta, estuary. And then we have started with the karst landforms. So we have looked at the limestone, dolomite and gypsum related rock structures wherein the water is reacting with these types of rocks, and then it creates different types of landforms. So within those landforms we have seen it creates cavern, that is the underground cave, gufa jo hoti hai, then arc and natural bridges, then next one is sinkhole, then cast window, then sinking creeks, and the depositional landforms related to it was mainly the stalactite and stalagmite. Next one was the marine landforms. So we have also seen the marine landforms which creates wave pressures, and then they create chasm, they create wave cut platforms, they create sea cliffs, sea caves, sea arches, stakes and chimneys, then hanging valley, blowholes, and then plain of marine erosion, that is called as Peeny plain. And then there were marine depositional landforms related to beach, then bar, then barrier, then spit and hoop. Then we have seen tombolo, coastline, different types of coastline were there, like coastline of emergence, coastline of submergence, neutral coastline, compound coastline, fault coastline. And we have also given example of India, different types of coastlines, etc. So after going by these all, now today what we are going to do, we will look into other types of landforms which are there and which are also very significant. So we will move on to next one, that is called glacial landforms. Okay, so this is also very important, glacial landforms, or you can also say it like glacial geomorphology. Okay, glacial geomorphology मतलब ग्लेशियर मतलब हिमानी भू आकृति. Glacial geomorphology. Okay, so as we have seen that there are multiple types of regions which creates different types of landforms over the surface of the earth. Similarly, glaciers also act on the areas where these ice sheets are deposited, and then they also react with those landforms, and they also involve into erosional processes, transportational processes, as well as depositional processes. So various types of glaciers are found, and their action and reaction and related landforms are developed. So one by one we will move on to all of these. ठीक है? So पहले हमें ये भी समझना है कि ये जो ग्लेशियर्स हैं जिन्हें हम हिमनद भी बोलते हैं, तो ये जो हिमनद हैं इनके विभिन्न कार्यों के विश्लेषण से पहले उसके सामान्य रूपों का उल्लेख करना भी बहुत जरूरी है. क्यों? कि जो हिमनद धरातल पर
जैसे कि नदियां बहती हैं उसी की तरह हिमयुक्त नदियों के रूप में भी होते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो बहुत मंद होती है. And if I say that these glaciers are not individual, rather they are in groups. ऐसा नहीं होगा कि you will find a river only. Here the glaciers are in groups. Okay. The whole bigger form, land form will be found in the glaciers. Okay. So we will move into that type of formation because these bigger sizes they create a total mass of all the glaciers. So नदी की तरह अकेले ना बह के हिमनद जो है क्या कहलाते हैं, इस तरीके से हिम समूह में होते हैं. ठीक है. तो जो भी जगह पे जहां पर भी इस तरीके के हिम क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्नो फील्ड्स भी बोलते हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान पे होते हैं, तो नीचे की तरफ आते हैं. और जब हिम क्षेत्र की जो निचली सीमा होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्नो लाइन. ठीक है. तो ये जो स्नो लाइन होती है, जब हम देखते हैं पहाड़ों पे मिलती है स्नो लाइन, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी रेखा जिसके ऊपर यहाँ पर आपको ग्लेशियर मिलेंगे देखने के लिए, उस लाइन से नीचे तक ग्लेशियर नहीं रहते हैं, तो ये स्नो लाइन कहलाती है. ठीक है. और यहाँ पे इसके उस लाइन के ऊपर आपको पूरे साल भर हिमावरण मिलेगा देखने को, बर्फ पिघल नहीं पाती है. ठीक है. और जो हिमरेखा की ऊंचाई है वो भूपृष्ठ के समस्त भागों पर एक जैसी नहीं होती, कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ऐसे ही हिमरेखा बन गई, नहीं. ये हिमरेखा ऐसे हो सकती है, कहीं ज्यादा, कहीं ऊंचाई पे, कोई नीचाई पे. ठीक है. तो हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो एक समान सभी भागों पे नहीं होती, अलग अलग भागों पे अलग अलग रेखा बनी हुई होती है. और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से, 0 डिग्री से पोल की तरफ चलेंगे, तो भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की तरफ आप चलना शुरू करते हैं तो हिमरेखा की ऊंचाई कम होती जाती है, क्योंकि जितना जितना आप जितने अक्षांश ऊंची अक्षांशों पे पहुंचते जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती चली जाएगी. जैसे कि आप देखते होंगे कि जो इक्वेटर के पास का एरिया है, साउथ इंडिया के आसपास का एरिया है ना, तो वहां पर आपको जो है ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, और जहाँ ज्यादा ऊंचे पहाड़ होते हैं तो स्नो लाइन उतनी ही हाइट पे होती है. और जैसे जैसे आप इधर नॉर्थ की तरफ चलते जाएंगे, ध्रुव की तरफ चलते जाएंगे हमारे इंडिया से, तो उतनी ठंडक बढ़ती जाएगी. अब रशिया में देखो, साइबेरिया में भले प्लेन एरिया हो, साइबेरियन प्लेन बोलते हैं ना एक एरिया, तो साइबेरियन प्लेन में भी क्या है, हाइट तो नहीं है लेकिन हमेशा बर्फ जमी हुई होती है. ठीक है. आपको हमेशा यहाँ पे स्नो देखने को मिलेगी. क्यों? क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड पर है, लेटीट्यूड पर है, ऊंची अक्षांश रेखा. तो इसलिए जैसे हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो हिमरेखा की ऊंचाई कम होती जाती है, और जब हम पोल पे पहुंच जाते हैं 90 डिग्री पे, तो यहाँ तो आपका जो सी लेवल है, सी लेवल पे भी आपको बर्फ ही देखने को मिलती है, ग्लेशियर देखने को मिलते हैं. ठीक है. अगर आप ग्रीनलैंड में देखें, साउथ चिली में देखें, तो यहाँ पर जो स्नो लाइन है वो 666 मीटर ही है ओनली. तो ये सब इसकी रिलेटेड बातें हैं. अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हिमनद के प्रकार. ठीक है. टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स. तो जो टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स है वो काफी वैरायटी में होता है. इसमें एक होता है आइस केप्स. हिमटोपियां. तो कुछ विद्वानों ने जो हिमटोपियों को हिम चादर का रूप भी माना है. ठीक है. वो कहते हैं कि ये आइस कैप जो है वो आइस शीट की तरह ही है. ठीक है. तो इनके अनुसार जो हिमटोपियों को लघु महाद्वीपीय हिमनदों के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन जब इसके विपरीत जब और दूसरे विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि पर्वतों की चोटियों पर जो भी हिम चादर बनी हुई होती है उसे हिमटोपी कहते हैं. कि ये पर्वत है, यहाँ पर ग्लेशियर पूरा जो जमा हुआ है, ठीक है, तो ये भले ही ये आइस शीट हो, लेकिन क्या कहलाती है, आइस शीट को हम आइस कैप कह देते हैं. ऐसा
कि जैसे इस पहाड़ की चोटी ने एक टोपी पहनी हुई हो, ठीक है। तो वास्तव में क्या होता है कि जो ये हिम टोपियां होती हैं, आइस कैप्स होती हैं, ये हाइट पर होती हैं, काफी ज्यादा हाइट पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ से इन हाइट साइड से हमें फिर क्या देखने को मिलता है, यहाँ से फिर हमें आइस कैप से ही ग्लेशियर्स का उद्भव दिखता है, उनका सृजन दिखता है, ठीक है। अब क्योंकि जो हिम टोपियों से ही हिमनदों का आविर्भाव होता है, तो इस आधार पर कुछ लोगों ने हिम टोपियों को हिमनद मानने से पहले असहमति दे दी है कि नहीं नहीं, फिर हम इसे हिमनद नहीं मानेंगे। यदि हिम टोपियों को हिमनद के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो इसका आविर्भाव या तो एक ही पर्वत चोटी पर होगा या फिर बहुत सारी पर्वत श्रेणियों पर सामूहिक रूप से होगा, ठीक है। और जब इन हिम टोपियों के से क्या होता है, जब गुरुत्वाकर्षण के कारण जब हिम जो है निचले धारों पर हिमनद के रूप में सरकने लगता है, तो वो जो घाटी बनती है, उस घाटी को हम क्या बोल देते हैं, हिमनद घाटी, ठीक है। कि यहाँ इस तरीके से माउंटेन है बने हुए, और यहाँ से घाटी एक वैली बन गई है, यहाँ बहुत सारा ग्लेशियर है, ठीक है। ये ग्लेशियर धीरे धीरे सरक सरक के यहाँ पर आने लगता है, नीचे की तरफ सरक के आने लगेगा। तो ये जो वैली बनाएगा यहाँ पर अपर्दन करने के बाद, ये क्या कहलाएगी, ग्लेशियर वैली, ठीक है। हिमनद घाटी। तो इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्र हैं। और अगर पूरे विश्व में देखेंगे आप, तो अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, यहाँ पर हिम क्षेत्र में काफी बहुत ज्यादा इस तरीके की हिम चादर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा आइस कैप की बात होता है, जिसे हम बोल देते हैं महाद्वीपीय हिमनद, दूसरे शब्द में बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। कॉन्टिनेंटल से महाद्वीप से समझ में आ रहा है कि जो ग्लेशियर महाद्वीप पर पाए जाते हैं, वो ग्लेशियर महाद्वीपीय हिमनद कहलाते हैं, ठीक है। या इसको दूसरी परिभाषा में आप कह सकते हैं कि जब किसी विशाल क्षेत्र में हिम के लगातार संचयन के कारण हिम की विस्तृत चादर का विकास हो जाता है, तो उस भाग में अलग अलग हिमनद ना होकर समस्त भाग में एक ही हिमनद के रूप में होता है। और इस तरीके के हिमनद का विस्तार सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा होता है। और यही कारण होता है कि फिर हम इन्हें क्या बोल देते हैं, हम इन्हें महाद्वीपीय हिमनद कह देते हैं। क्योंकि महाद्वीपीय हिमनद को दूसरा शब्द जो यूज हो जाता है, इसके लिए हम यूज कर लेते हैं आइस शीट, हिम चादर, क्योंकि बहुत फैला हुआ है ना पूरे भूभाग में, बड़ी दूर तक काफी विस्तृत क्षेत्र में ये फैला हुआ होता है। और महाद्वीपीय हिमनदी जो क्षेत्र है, वो उच्चतम भाग से चारों तरफ फिर देखिए रेडियली रूप फॉर्म में धीरे धीरे सरकने लगता है। मान लीजिए कोई इस उठा हुआ भाग है एक कॉन्टिनेंट का, तो यहाँ पर पूरे पे ग्लेशियर जमा हुआ है, तो अभी क्या होगा, ये इधर के स्लोप पे भी और इधर की ढाल पे भी, दोनों ढालों पे धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड में, स्लो मोशन होता है इसका, ये धीरे धीरे सरकने लगता है, ठीक है। तो एक बीच से चारों तरफ हर ओर, इधर भी सरक रहा है, उस तरफ भी सरक रहा है, इधर भी सरक रहा है, इधर भी सरक रहा है, चारों तरफ जहाँ भी ढाल है वहां से नीचे की तरफ सरकेगा। तो इस पोर्शन को क्या बोल देते हैं, कोई चीज इस तरीके से चारों दिशाओं में बीच सेंटर से अगर निकल के चारों तरफ बह रही हो, कि पैटर्न बनाती है, इस पैटर्न को बोल देते हैं हम रेडियल पैटर्न, हिंदी में बोल देते हैं इसको आर्य या अरीय प्रारूप। ऐसे ही यहाँ पर ये चारों तरफ बहती है ना। और इस तरीके के जो प्लिस्टोसीन हिमयुग के समय की बात है, जब महाद्वीपीय हिमनद का प्रभाव, हिम चादर का जो विस्तार है, वो उत्तरी अमेरिका में इधर लेब्राडोर क्वार्टिन क्षेत्र है वहां से हुआ था। फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका का भी लगभग काफी आधा भाग जो था वो हिमाच्छादित हो गया था, उसमें भी पूरे में ग्लेशियर जमे हुए थे। और उसके अलावा लेब्राडोर ग्लेशियर है जेम्स की खाड़ी के आसपास, वहां पर भी काफी आपको देखने को मिलेगा कि पुराना जो अवशेष है वहां पे देखने को मिलते हैं, 3000 मीटर ऊंची मोटी चोटी वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है
थर्ड, जिसको बोल देते हैं माउंटेन और वैली ग्लेशियर्स, पर्वत हिमनद या घाटी हिमनद। ठीक है, तो जो पर्वतीय भागों में ऊंचे क्षेत्र हैं, ऊंचे स्थान हैं, जहाँ पर हिमटोपी या हिम क्षेत्र से हमें काफी ज्यादा मात्रा में हिमराशि देखने को मिलती है। और वो जो हिमराशि है, वो जो स्नो फील्ड्स के अंदर जो आपके हिम क्षेत्र में आइस कैप्स के ऊपर जो भी आपको ग्लेशियर्स का मोटा एक अमाउंट मिल रहा है देखने को, जब वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ढाल की ओर एक नदी के रूप में नीचे बहती हुई नीचे की तरफ आती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पर्वतीय हिमनद बोल देते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय हिमनद जो है वो मुख्य रूप से पर्वतीय घाटियों से फ्लो होते हैं। ठीक है, फ्लोइंग इन माउंटेन वैलीज, उसमें माउंटेन वैलीज में फ्लो करते हैं, और इसीलिए जो है इसको हम वैली ग्लेशियर्स भी कह देते हैं, घाटी हिमनद भी बोल देते हैं। ठीक है, और यही रीजन था कि जो ये आपके माउंटेन ग्लेशियर्स हैं, इनका सबसे पहला जो अध्ययन हुआ था, जिन्हें किया था जब, तो हाँ, तो वो जो है आपके आल्प्स माउंटेन्स में देखने को मिला था सबसे पहले। ठीक है, आल्प्स माउंटेन में इसका हुआ था, तो इसीलिए तब इसका नाम भी पड़ा था, दूसरा नाम भी एक था अल्पाइन ग्लेशियर्स। ठीक है, तो ये जो अल्पाइन ग्लेशियर्स होते हैं, ये जो अल्पाइन ग्लेशियर्स बोलिए आप या माउंटेन ग्लेशियर बोलिए, तो ये जो माउंटेन ग्लेशियर्स हैं आपके सामने, ये क्या होते हैं, और जो इनका उद्गम क्षेत्र है, ओरिजिन पॉइंट है, वहां पर ये काफी ज्यादा वो तो वाइड होते हैं। ठीक है, चौड़े होते हैं, परंतु जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आने लगेंगे, ठीक है, तो उस तरीके जितना नीचे आते जाएंगे उतना क्या होते जाएंगे, नैरो होते जाएंगे। यहाँ पर वाइड है, यहाँ पर नैरो होते जाएंगे। ठीक है, संकरे होते जाएंगे। तो दूसरी चीज है कि आकार की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो इन घाटी हिमनदों में काफी अंतर देखने को मिलता है। तो इनकी लंबाई जो है वो आपका कुछ मीटर से लेके कई बार 2000 किलोमीटर तक आपको ये देखने को मिलेंगे, इतनी दूर तक फैले हुए होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे फिर ये नीचे आते जाते हैं तो क्योंकि हाइट कम होती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं पिघल जाते हैं और फिर ग्लेशियर्स खत्म हो जाते हैं। तो ये हो गया माउंटेन ग्लेशियर और वैली ग्लेशियर। फिर इसके बाद एक और आता है फोर्थ, जिसे बोल देते हैं हम पीडमोंट ग्लेशियर्स। दूसरा नाम इनका है पीडमोंट, मतलब जो पहाड़ों का जो नीचे का स्तर है, जिसको गिरिपद बोल देते हैं। ठीक है, तो ये गिरिपद हिमनद हो गए, ढाल के नीचे जो पाए जाएंगे पर्वतों के, उन्हें बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब ये माउंटेन की वैली से ऊपर से चोटियों से खिसकते खिसकते ग्लेशियर्स नीचे आ गए, और आते आते फिर क्या हुआ, ऊपर से खिसकते खिसकते यहाँ पर आके इसकी तलहटी पे जमा हो गए। ठीक है, तो वहां पर एक साथ नीचे आएंगे और सारे एक साथ मिल जाएंगे ग्लेशियर जितने भी थे। ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, एक बहुत बड़ा एक छोटे अलग अलग ग्लेशियर्स आए एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए, और फिर ये इकट्ठे होके पूरे विस्तृत क्षेत्र में फैल गए, तो इसे हम गिरिपद हिमनद कह देते हैं। ठीक है, और ये हमेशा ऐसे जो पीडमोंट ग्लेशियर्स हैं ये आपको कोल्ड वाले एरिया में मिलेंगे, कोल्ड रीजन्स में बोल देते हैं इसको, ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि जो गर्म प्रदेश होंगे वहां तो नीचे तक आते आते पिघल जाते हैं, इसीलिए पीडमोंट ग्लेशियर्स आपको ठंडे एरियाज में देखने को मिलते हैं। और नीचे उतरते उतरते इनकी स्पीड तो हो जाती है बिल्कुल खत्म या बिल्कुल स्लो। ठीक है, तो वहीं पे इकट्ठे भर जाते हैं, इकट्ठे रह जाते हैं। और आपको ऐसे ग्लेशियर्स काफी देखने को मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं आप अगर इधर देखें अलास्का के साइड, वहां पर आपको काफी ग्लेशियर्स जो है पीडमोंट ग्लेशियर्स के रूप में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है,
तो पिडमोंट ग्लेशियर्स तलहटी पे ये पॉइंट है, और वैली ग्लेशियर्स कहाँ था, माउंटेन और वैली ग्लेशियर्स यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ गया, ये चोटियों के ऊपर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर इसकी स्थिति होगी। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारा हिमालय में भी बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर्स की बात करें तो हिमालय के अंदर मिलते हैं देखने को। और हिमालय इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का बोल दीजिए, वही ज़्यादा सही रहेगा रीजन। तो लार्जेस्ट इन हिमालयन ग्लेशियर्स में कौन सा है, हिमालयन ग्लेशियर्स। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है हिमालयन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है, जो कि लगभग 72 किलोमीटर का है, इतना बड़ा। कहाँ पर है ये आपको काराकोरम रेंज में देखने को मिलेगा, इंडिया हिमालय के काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। और एक और ग्लेशियर जो काफी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमारी सबसे पवित्र नदी गंगा नदी बहती है, निकलती है, जिसका उद्गम स्रोत है, कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो गौमुख है, गौमुख है ना, वहां से हमारी गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि पहले तो उत्तर प्रदेश में आता था, जब उत्तराखंड बढ़ गया तो फिर ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और इसकी लंबाई भी लगभग 25.5 किलोमीटर है, तो काफी लंबा, काफी बड़ा है ग्लेशियर ये वाला भी। ठीक है। और अभी यहाँ पर हिमालय में, क्योंकि हिमालय की जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप वो काफी खड़ी है। ठीक है, काफी स्टीप हाइट है इसकी, तो इसीलिए हिमानी जो है वो धीरे धीरे खिसक कर आती है, कई बार 3-3.5 किलोमीटर तक काफी बहते हुए नीचे तरफ चली जाती हैं। ठीक है। और कुछ जगहों पे ये जो है 5-5 हजार मीटर तक नीचे खिसकता हुआ ग्लेशियर जो है वो चला आता है। तो अगर आप जो पोलर रीजन्स हैं, पोलर एरियाज हैं, ध्रुवी क्षेत्र जिन्हें हम बोलते हैं, तो अगर वहाँ के ग्लेशियर को छोड़ दें तो विश्व के सबसे बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो आपको इसी हिमालय पर्वत की श्रेणी में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो फिर चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, इतनी बड़ी बड़ी नदियों का जो उद्गम स्रोत है वो भी देखो आपको यहीं देखने को मिलता है। जी, काराकोरम रेंज में एक और भी ग्लेशियर याद आता है, जिसको हम बोल देते हैं बाल्टोरो ग्लेशियर। तो ये जो बाल्टोरो ग्लेशियर है, ये भी जो है काफी अच्छे तेजी से बहता है, मतलब फ्लो करता है, मूव करता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है, और इसकी स्पीड है 12 मीटर पर डे। 12 मीटर आप समझ सकते हैं 1 मीटर कितना बड़ा होता है, और इस तरीके से 12 मीटर तक ये आगे चला जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो है बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो है देखने को मिलते हैं काराकोरम रेंज के अंदर। बाल्टोरो हो गया, सियाचिन हो गया, बियाफा हो गया, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। कुमायूं हिमालय है, वहां पर आपको केदारनाथ, गंगोत्री, कीसा, इस तरीके के देखने को मिलेंगे। सिक्किम में हमारा जेमू ग्लेशियर है, कंचनजंगा ग्लेशियर है, तो काफी बड़ा है। ऐसे ही कश्मीर में भी कुछ हैं, जैसे रूपल है, पूनम है, रेमो है, ऐसी कुछ ग्लेशियर्स हैं जिनका काफी नाम है और काफी बड़े ग्लेशियर्स हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स। मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स, हिमनदों का गतिशील होना। गतिशील होना। ठीक है। तो पहले जो है शुरुआत में जब इनके बारे में स्टडीज हुई तो काफी गलत गलत धारणाएं थी ग्लेशियर्स के बारे में, कि हिमनदों को माना जाता था कि ये हमेशा एक जगह पे रहते हैं और ये गतिशील नहीं होते, मतलब खिसकते नहीं, एक जगह पर जहाँ पर जमी हुई बर्फ जमी रहती है। और क्यों ऐसा लगता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो डेवलप हुई नहीं थी कि भाई पहले से फोटो खींच लें कि आज 2019 1990 में ये कहाँ पर है
2000 में सन कहाँ पर है, 2022 में कहाँ पर है। ऐसे तो हमारे पास पहले विश्व में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई नहीं थी, तो लोगों को लगता था वही है, क्योंकि कुछ मीटर आगे खिसक गया तो किसी को क्या बचल रहा है कुछ सालों बाद जाके। लेकिन जब भी कुछ साइंटिफिक स्टडीज हुई, कुछ प्रयोग हुए, तो फिर ये जो पुरानी विचारधारा थी उसको गलत साबित कर दिया गया। तो और उसमें फिर कुछ विद्वानों ने ही केवल जो थे, जो उन्होंने ग्लेशियर्स की मूवमेंट के ऊपर, गतिशीलता के ऊपर विश्वास किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ यही नहीं बोला कि खिसकते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि ये नदी के रूप में खिसकते हैं। जैसे नदी जो है वो अपनी घाटियों में प्रभावित होती रहती है, तो इसी प्रकार से ग्लेशियर भी जो है प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, एक जगह पे स्टेटिक नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते। एक प्रोफेसर थे ह्यूजी, प्रोफेसर ह्यूजी, ये स्विट्जरलैंड के थे। तो इन्होंने व्यक्तिगत कुछ पर्यवेक्षण किया, आधार पे, उनके आधार पे उन्होंने इस बात को स्टैब्लिश किया कि यस, ग्लेशियर्स आर मूविंग। और कहाँ पे किया, क्योंकि स्विट्जरलैंड के थे तो वहां पर जो आल्प्स माउंटेन है वहीं पे उन्होंने स्टडी की। तो उन्होंने क्या किया, जो आल्प्स के जगहों पे, आल्प्स पर्वत पे जो ग्लेशियर था वहां पर एक खूंटी लगा दी। ठीक है, और वो खूंटी लगाई जो कि 14 साल पहले प्रारंभिक स्थान से 4200 फीट आगे तक आगे बढ़ गई थी। समझ रहे हो, जहां लगाई थी उससे बाद 14 साल बाद 4200 मीटर आगे बढ़ चुकी थी। फिर ऐसे ही फिर एक बार और दूसरा साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुई। तो लुई अगासिज बोलते थे उनको। उन्होंने भी हिमनद के आर पार के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक सीधी रेखा में बहुत सारी खूंटियां गड़वा दी इस तरीके से। और कुछ टाइम बाद फिर जब उन्होंने दोबारा से इसका निरीक्षण किया, तो उनको पता दिखा कि किनारे की जो खूंटियां थी उनके मुकाबले जो बीच वाली खूंटियां हैं वो ज्यादा बढ़ गई थी। अगर ये इतनी बढ़ गई तो ये और ये थोड़ी कम बढ़ी। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो सभी खूंटियां थी, खूंटियां जितनी भी थी लगाई हुई, वो सभी घाटी के ढाल की ओर झुकी हुई थी। ठीक है, अगर ये इस तरीके से मैं ढाल बनाऊं तो इस तरफ से आगे की तरफ झुकी हुई थी, मुड़ी हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर अब इस आइडिया, इस वाले परीक्षण से अगाशीज ने हिम नदियों के बीच में के गति के विषय में बहुत सारी दिलचस्प जो भी फैक्ट्स थे उनको उन्होंने बताया। कि उन्होंने पहली बात तो बताई कि जो हिमनद हैं वो क्या होते हैं, वो हिमनद में गति होती है, ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पे होते हैं, हिमनद में गति होती है। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया कि उसके मार्ग में समान गति नहीं होती, समान गति नहीं होती। ठीक है, किनारे की अपेक्षा मध्य भाग में अधिक गति होती है। और हिमनद की गति तली की अपेक्षा सतह पर अधिक होती है। ठीक है, तो ये जो है आज के टाइम पे तो सभी लोगों को समझ में आ गई, मान चुके हैं कि हाँ, ग्लेशियर्स आर मूविंग, और सभी ग्लेशियर्स की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। और एक ही जो ग्लेशियर है उसकी स्पीड अगर आप देखेंगे तो उसकी जनरल स्पीड के वजह से डिफरेंसेस भी होते हैं। कि in winters they are not they are flowing differently with different speeds, and if they are flowing in summers they are flowing with the different speeds. Because in the summers, because there is higher temperature, so the melting of glaciers is higher. In that case what is happening, that they are flowing with a greater speed, ज्यादा तेज गति से हिमनद बहेंगे गर्मियों के अंदर। और सर्दियों में क्योंकि ज्यादा ठंड होती है, जमे रहते हैं, तो उतनी ज्यादा तेजी से वो बहते नहीं है।
आगे की तरफ नहीं जाती, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा तेज गति वाले जो ग्लेशियर्स हिमनद जो पाए जाते हैं वो आपको ग्रीनलैंड के अंदर पाए जाते हैं, कि ग्रीनलैंड के अंदर लगभग लगभग 3 मीटर प्रति दिन की स्पीड से ग्लेशियर जो है बहते हैं, इनका मूवमेंट होता है, ग्लेशियर मूवमेंट होता है, ठीक है। ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा तेजी से होता है। और अंटार्कटिका का भी एक ग्लेशियर है जिसको बोल देते हैं बियर्ड मोर ग्लेशियर, बियर्ड मोर। कभी कभी एग्जाम्स में इन ग्लेशियर्स के नाम भी पूछ लेते हैं, इसीलिए मैं इनको आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में जो ये बियर्ड मोर ग्लेशियर है, ये पूरे संसार का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, सबसे बड़ा। और ये जो है स्पीड इसकी कितनी है, लगभग लगभग 1 मीटर पर डे की स्पीड से ये फ्लो करता है। अब दूसरी चीज आती है इसके अंदर कि इसके कारण क्या क्या हैं। हिमनद का मूवमेंट चलो हमें समझ में आ गया कि मूव करते हैं, तो रीजंस क्या हैं? रीजंस फॉर ग्लेशियर मूवमेंट, मूव क्यों करते हैं, रीजंस क्या हैं? तो जो रीजन है उसके बारे में काफी लोगों का आपस में कई मतभेद भी हैं, लेकिन ये माना जाता है कि ग्रेविटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, ठीक है। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम करता है। तो हिम का जो संचयन होता रहता है, जब एक के बाद मतलब एक कहीं पे बर्फ जमी तो जमती गई जमती गई जमती गई, बड़ी होती गई, काफी बड़ा हो गया, तो भारी हो गया। और भारी हो गया तो फिर क्या होगा, एक जगह पे जहाँ था वहां से धीरे धीरे सरकने लगेगा। और जैसी जैसी आपकी ढाल प्रवणता होगी, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो आगे नीचे की तरफ खिसकेगा। कोई चीज होती है ना, अगर आप ढाल पे रख खड़ी कर देखो, किसी की ढाल ऐसी हो सकती है, कोई ढाल ऐसे हो सकती है, कोई ढाल ऐसे हो सकती है, और कोई ढाल ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें से इसका जो ग्रेडियंट ऑफ स्लोप है, ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, ढाल प्रवणता सर्वाधिक होगी, है ना। और इसका जो ग्रेडियंट ऑफ स्लोप है वो कम होगी। तो अगर यहाँ पर ग्लेशियर जमा हुआ है तो वो धीमे फ्लो करेगा, और अगर कोई ग्लेशियर यहाँ पर जमा हुआ है तो ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो इसीलिए आपका जो ग्रेडियंट ऑफ स्लोप है ये भी एक कारण बन जाता है ग्लेशियर्स के मूवमेंट का, ढाल की प्रवणता, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हिम नदी की जो घाटी की ढाल प्रवणता है इतनी है कि उससे होकर हिम जो है, जो भी स्नो है उसके अंदर, वो आगे बढ़ जाती है। पर जो गिरती है नीचे की तरफ आगे जाती है तो टूट कर गिरे नहीं, तो हिम के भार के कारण जो ढाल के सहारे हिमनद की गति वो प्रारंभ हो जाती है। तो इस बारे में काफी लोगों का विरोध भी है, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होता। तो अगर हिम राशि के भार की वजह से और दबाव की वजह से और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण हिम नदियों में गति होती, तो जो ठंड का मौसम आता है, जब सर्दियां आती हैं, तो उस टाइम पे तो इनमें ज़्यादा तेज गति होनी चाहिए थी, क्योंकि वही जाड़ी जब होते हैं, जब सर्दियाँ होती हैं, तो उस टाइम पे तो ज़्यादा आपका डिपोजिशन होता है स्नो का, है ना, इनका संचयन ज़्यादा होता है। और लेकिन ऐसा होता नहीं है, उस टाइम पे स्लो मूवमेंट होता है, जबकि जो गर्मी का मौसम आता है तो सबसे ज़्यादा जो गति होती है हिम नदियों की, ग्लेशियर्स की, वो उस टाइम पे ज़्यादा होती है ना। तो इस प्रकार से फिर जो कुछ और दूसरा वर्ग है विद्वानों का, उनके अनुसार क्या है कि जो हिम नदियाँ हैं, जो हिम नदी हैं, उनके गति जो है वो जल से हिम बनते समय उसके आयतन में विस्तार के कारण होती है, ठीक है। तो एक उन्होंने जो अपना वो बताया, वो ये कारण बताया कि जब जल हिम में परिवर्तित होता है, एक मिनट,
तो जब जल जो है हिम के रूप में परिवर्तित हो गया तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, उसके आयतन में वृद्धि होती है। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड कंटेंट बता रहा हूँ जो कि आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, सिर्फ प्री के लिए नहीं, ठीक है, लेकिन इसीलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जब आयतन वृद्धि हो गई तो फिर उससे की वजह से क्या होगा, फिर जिस कारण हिम राशि का प्रसार होने लगता है, हिम राशि का प्रसार होने लगता है, ठीक है। तो इस प्रसार जब जो इनका फिर मूवमेंट है वो लगभग 2000 पाउंड पर इंच स्क्वायर में होने लगता है, ठीक है। तो अगर जो दोनों ये आइडियाज थे, ये ऊपर के दो आइडिया और ये एक आइडिया, ये जो बताया एक कंसेप्ट जो कुछ साइंटिस्ट ने बताया, तो अगर इनको आप देखें म्यूचुअली एक साथ कनेक्ट करके, तो हम कह सकते हैं कि जो हिमनदी में गति स्पीड आ रही है वो किस लिए हो रही है, क्योंकि गुरुत्व शक्ति जो है और जल के हिम में परिवर्तित होने के कारण इसका मूवमेंट हो रहा है और उसकी जो स्पीड है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से आ रही है, ठीक है। और यदि इसकी हिमनदी की घाटी का ढाल ज्यादा होता है और हिम है, जो स्नो है वो मोटी, उसकी मोटाई अधिक है तो उसकी गति भी ज्यादा होगी। लेकिन हिमनदी में अगर मलबा आ जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि बर्फ जमती है पहाड़ों के ऊपर, तो उसके अंदर जो भी कोबल्स केबल जो भी उसके कंकड़ पत्थर चट्टानों का जो अवशेष है उसको मलबा बोल देते हैं, डेब्रिस जिसे बोलते हैं, वो भी काफी होता है। और अगर स्लोप कम है तो गति धीमी होगी। तो जो मूवमेंट होता है आगे बढ़ता है ग्लेशियर, तो उसको हम बोल देते हैं हिमनद का बढ़ना, एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर्स। और पीछे हटने वाली क्रिया जो होती है उसको बोल देते हैं रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। हिमनद का बढ़ना मतलब एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर, और हिमनद का निवर्तन मतलब रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। तो जब हिमनदी है, कोई ग्लेशियर है, उसका आगे वाला जो भाग है वो इवोपरेशन की वजह से और मेल्टिंग की वजह से नष्ट हो गया, तो ऐसा लगता है कि जो हिमनदी है वो पीछे की, जो ग्लेशियर है वो पीछे खिसकता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिस कारण इवोपरेशन से मेल्टिंग की वजह से ग्लेशियर जहाँ पर था वहां से पीछे हो गया, मान लीजिए 2000 में यहाँ था और अब सन 2020 में कहाँ, 2022 में कहाँ हो गया, ये इतना रह गया, यहाँ तक रह गया। तो ये पीछे की तरफ हो गया पिघलने की वजह से और वाष्पीकरण की वजह से, गर्मी तापमान बढ़ने की वजह से पीछे रह गया। आज ये जो लाइनें पीछे हो गई है, तो इसको क्या बोल देते हैं आप, इसको बोल देते हैं अवसान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्लेशन, ठीक है। तो यही एक कारण है जिसको हम बोल देते हैं हिमनद का पीछे हटना, रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर या हिमनद का निवर्तन, ठीक है। अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे कि जो हिमनद है उसके कौन कौन से इरोजनल वर्क हैं, इरोजनल एक्सरसाइजेज हैं, और जिसकी वजह से वो नए नए अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स को डेवलप करता है, ठीक है। तो ग्लेशियल इरोजनल लैंड फॉर्म्स, तो जो हिमनद का जो ये जो कार्य है, अपरदन का जो कार्य है, ठीक है, ये कई अलग अलग फॉर्म्स में होता है। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इरोजन जो होगा मेन टू टाइप से होगा इसका, एक को बोल देते हैं हम एब्रेजन और दूसरा कहलाता है आपका प्लकिंग, ठीक है। तो एब्रेजन क्या हो गया आपका, अपघर्षण, और ये हो गया उत्पाटन, प्लकिंग, ठीक है। तो
अगर ये सोचो कि जो हिमनदी है, जो ग्लेशियर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ रहे और कुछ ना रहे, तो वो अपर्दन नहीं कर पाएगा, उसमें सामर्थ्य नहीं रहेगी। लेकिन जब जो ग्लेशियर होता है, उसके अंदर आपको रॉक्स के, चट्टानों के, शैलों के छोटे छोटे कंकड़, पत्थर और कई सारे जो चूर्ण शैल पत्थरों का रॉक्स का जो चूरा होता है, वो काफी मात्रा में ग्लेशियर में जम जाता है, मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ग्लेशियर मूव करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये अपरदन का एक सक्रिय कारक बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी कंकड़, पत्थर, रॉक्स के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, वो एक तरीके से इरोजनल टूल्स के रूप में काम करते हैं, अपरदन के यंत्र के रूप में काम करते हैं। और इसकी वजह से वो क्या पैदा करता है, अपघर्षण पैदा करता है, चट्टानों को काटता है जिनके ऊपर जा रहा है वो। तो इसकी वजह से भी जो हिमनद है, वो अपनी घाटी की तली को और अपनी घाटी के किनारों को अपर्दित करता रहता है। और यही जो क्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एब्रेजन कहते हैं या अपघर्षण कहते हैं। ठीक है। और फिर जब हिमनदी की गति के कारण जो भी उसके टूल्स हैं, कंकड़, पत्थर आदि, वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, और रास्ते में जो भी चट्टान पड़ेगी उस पर कैसा काम करेंगे, रेगमाल की तरह काम करते हैं। आप देखते होगे ना, रेगमाल को जो जब पुताई वगैरह करने आते हैं, पेंट करने आते हैं, खासकर खिड़कियों वगैरह पे, दरवाजों पे, जब तो क्या करते हैं, वो रेगमाल रगड़ते हैं ना, जिसको हम बोल देते हैं सैंड पेपर। हाथ में लेके रेगमाल से रगड़ते हैं ना उसको, ताकि जो पुराना जर, कोई जर लगा हुआ है या जो भी गंदगी लगी हुई, साफ हो जाए। तो एक तरीके से ये जो उसके ग्राइंडिंग टूल्स हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह, वो भी उस चट्टान पे रेगमाल की तरह काम करते हैं। और जो हिमनदी है, ग्लेशियर है, उसकी जो वैली है, तो उस वैली की जो तलहटी है, तली और किनारे, दोनों की तरफ जो है घिसती रहेगी, और घिसने की वजह से चिकने हो जाते हैं। ठीक है, रगड़ खा के चिकने हो जाते हैं, और फिर ग्लेशियर जो है वो आगे बढ़ता है और धरातल को खुरसते हुए चलते जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो रॉक्स होती हैं, ये मूव कर रहा है ऐसे करके, आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, तो जिसके ये जो धरातल है, यहाँ पर लाइन सी बन जाती है, रेखाएं भी बन जाती हैं। ठीक है, इन्हें हम बोल देते हैं धारियां, तली पे बन गई हैं। ठीक है, या इसको स्ट्रेन्स बोल देते हैं, आप स्ट्रेन्स भी बना लेते हैं। तो ये धारियां जो है अपघर्षण की प्रचायक होती है। धारियां बननी, इसका मतलब क्या हो रहा है, एब्रेशन हो रहा है। एब्रेशन जो है वो चालू है इसकी तलहटी पर। ठीक है, और फिर दूसरा क्या होता है, प्लकिंग, जिसे हम उत्पाटन बोलते हैं। तो ये जो उत्पादन की प्रक्रिया है, इसमें हिमनद जो है चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर उन्हें अपने साथ कर लेता है। जैसे फूल तोड़ते हैं ना, प्लक कर लेना, पौधे में कहीं पे फूल लगे हो, आप देखते होंगे कि जब सुबह सुबह कि अगर किसी के घर में क्यारी में बाहर पौधे लगे हों, तो जो खासकर जो बूढ़े लोग होते हैं, वो सुबह सुबह पूजा के लिए उन पेड़ों के पास जाते हैं और वहां से फूल तोड़कर अपने घर में फिर पूजा करते हैं, फूल लगा के। तो वो क्या करते हैं, दे आर प्लकिंग द फ्लावर्स, है ना। तो तोड़ रहे हैं, फूल को तोड़ रहे हैं, प्लकिंग। इसी तरीके से जो ग्लेशियर है, उसके साथ जो भी सामने जो भी चट्टाने, साथ में चट्टाने आ रही है, उनको तोड़ देती है, और तोड़ के आगे बढ़ती जाती है, अपने साथ ले जाती है। और जब वर्षा और हिम के पिघलने के जो भी कारण, जो भी पानी डेवलप हुआ, पैदा हुआ, वो फिर उन रॉक स्ट्रक्चर्स के बीच में जो क्रैक्स बन गए हैं, उनमें चला जाता है। और फिर क्या होता है, क्रैक्स में चला गया, मान लीजिए ये एक चट्टान है, इसको इसने ग्लेशियर टकराया तो इसमें दरारें पड़ गई। ठीक है, जहां दरार है, वहां पर जब ग्लेशियर पिघला, तो उन दरारों में पानी भर गया। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। पानी भर गया, अब जब ये पानी भर गया और जब फिर ठंड हुई, तो ठंड होने के कारण क्या होगा, जो पानी था वो बर्फ बन जाएगा। और जब पानी बर्फ बनता है तो फैलता है ना। पानी बर्फ बनता है तो फैलता है। ठीक है, वॉल्यूम उसका ज्यादा हो जाता है। जो फैलेगा, क्रैक तो इतना बड़ा है, फैला तो उसने क्रैक को इतना बड़ा बना दिया, फैला दिया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो शेल थी, जो रॉक थी, ये वीक हो गई, क्रैक्स बड़े हो गए, इसने इसको वीक कर दिया, क्रैक्स को वीक वीक
रॉक्स बना दिए, क्रैक्स को, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि और ग्लेशियर आया पीछे से बहता हुआ, जो कमजोर, जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो टूटकर अलग हो गए, और इस प्रकार से हिमनदी के द्वारा इस तरह की उत्पाटन की क्रिया ज्यादा होती जाती है। तो उत्पाटन के रूप में जो भी इरोजन होता है, अपर्दन होता है, वो ग्लेशियर अपने शीर्ष की ओर से अपर्दन करता है। आगे की तरफ बढ़ने वाला जो इरोजन होता है, ये इस तरीके से अगर आगे की तरफ मूवमेंट है, तो यहाँ पर जो भी ये इरोजन करेगा चट्टानों को आगे की तरफ, इसे बोलते हैं हेडवर्ड इरोजन, सामने की तरफ से इरोजन करना, ठीक है। शीर्ष का अपर्दन, शीर्ष का अपर्दन, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या होता है, ये कई अलग अलग प्रकार की भूआकृतियों का निर्माण करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एक एक करके कि किस किस प्रकार से ये नई नई घाटियों का निर्माण करता है, और कौन कौन सी घाटियां किस किस प्रकार से यहाँ पर बनती हैं, ठीक है। तो के कारण बनी आकृतियां, इन्हें देखेंगे, ठीक है। पहला आता है यू शेप वैली। यू शेप्ड वैली, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो वैली बन रही है वो कैसी बन रही है, यू शेप की बन रही है, ठीक है। तो जब पर्वतीय भागों में घाटी के अंदर हिमनद ऐसी घाटियों से होकर गुजरते हैं, प्रवाहित होते हैं, जिनके किनारे खड़े ढाल वाले हैं, और इस तरीके से खड़े ढाल वाले हैं, और जो तली है वो सपाट है, चौरस है, तो इसका जो शेप है वो कैसा बन गया, यू शेप बन गया। इंग्लिश में जो यू लिखते हैं उससे मिलता है, तो इसीलिए यू आकार की घाटियां कहते हैं इसको। और ये ध्यान रखें कि जो यू आकार की घाटियां हैं, ठीक है, कभी कभी इन घाटियों के ऊपर सहायक घाटियां भी लटक जाती हैं, और इस तरीके की जो लटकती हुई घाटियां होती हैं उनको हम लटकती घाटी से युक्त यू आकार की घाटी कहते हैं। और जो भी पर्वतीय उच्च भाग हैं उनमें हाइट पे जो आपको पहाड़ों में देखने को मिलेगा, वहां पर ग्लेशियर्स कोई नई घाटी का निर्माण खुद नहीं करता, बल्कि जो पहले से जहाँ पर नदियां बह रही थी और नदियों ने अपनी घाटियां बनाई हुई थी, उन्हीं का ही वो परिवर्तन करता है, उन्हीं को ही वो संशोधित कर देता है। क्योंकि एब्रेजन और प्लकिंग, अपघर्षण और उत्पाटन की क्रियाओं के कारण जो नदियों ने अपनी घाटी बनाई हुई है, वहीं से होकर ग्लेशियर हिमनद प्रवाहित होता है, और उसके कारण कट कर चौड़ी होती रहती हैं जो भी घाटियां जिनके अंदर ये ग्लेशियर बह रहा है, ठीक है। तो उसके जो किनारे हैं ये कैसे होते जाते हैं, ये लंबवत होते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हाइट पे आपने देखा होगा, जब हमने फ्लूवियल इरोजनल प्रोसेस पढ़े थे तो पहले वी शेप की आकार की घाटी बन रही है, इसको फिर इसने क्या किया, ग्लेशियर ने यू यू शेप की घाटी बना दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या है कि जो शैल हैं वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग इग्नियस रॉक्स भी हो सकती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हो सकती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती हैं, है ना। तो असमान अवरोध वाली घाटियां हैं, तो उसमें क्या होगा, ये घाटी जो बनेगी वो सोपानकार की बनेगी, ठीक है। फिर यहाँ सपोज कि सोपानकार मतलब स्टेप लाइक वैली, जब उसमें क्या कहते हैं, अलग अलग रॉक स्ट्रक्चर्स की पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई ज्यादा ऐसा पहाड़ है जहाँ पर जो चट्टाने हैं वो इग्नियस रॉक्स की हैं, आग आग ने शैल होती हैं, तो मजबूत होंगी, उनको ग्लेशियर ज्यादा काट नहीं पाएगा।
फिर वो आगे बढ़ेगा जितना काट पाया। आगे उसको मिल गई सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक तो क्योंकि इतनी मजबूत नहीं होती जितनी आग्नेय शैलें होती हैं, इग्निस रॉक होती हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स को वो काट देगी ज्यादा। तो वहां पर सीढ़ी की तरह, सीढ़ी के आकार की सोपानकार घाटी का वो निर्माण कर देती है, स्टेप्स लाइक वैलीज बना देती है। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा जो आता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जिसे हम बोल देते हैं हैंगिंग वैली। तो हैंगिंग वैली क्या है, इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं लटकती निलंबित घाटी। इसमें क्या होता है कि जो ग्लेशियर की मेन वैली है उसके तल से उसमें मिलने वाली जो सहायक घाटियां हैं वो उनका तल जो है ज्यादा ऊंचा होता है। तो जो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर जब मिलती हैं आके तो वो लटकती हुई सी प्रतीत होती हैं, और यही कारण है कि उन्हें हम लटकती घाटियां या निलंबित घाटियां या फिर बहिलंबित घाटियां भी कह देते हैं। और जब बर्फ उसमें से पिघल जाती है तो इन लटकती हुई घाटियों से पानी नीचे की तरफ बहने लगता है, और जब पानी बहने लगता है तो वो वाटरफॉल का निर्माण करता है जिसे हम जल प्रपात बोलते हैं। इस प्रकार से, इसी कारण से जो ये हैंगिंग वैलीज हैं, लटकती हुई घाटियां हैं, इनको प्रपाती घाटियां भी बोला जाता है। ठीक है। फॉलिंग वैली कैसे कि मान लीजिए ये एक माउंटेन स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, और ठीक है, बना दिया, और यहाँ पर जैसे घाटी है, इधर से बीच में घाटी है, और इधर से घाटी बनी हुई है। यहाँ से ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं, यहाँ से ये भी ग्लेशियर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले पहले से एक घाटी जो है बन गई, ठीक है, और ये आके इसमें ऐसे टकरा के मिल रही है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गई, मेन वैली हो गई, मुख्य घाटी हो गई। और जो ऊपर से नीचे गिरी ये जो घाटी है, ये जो यहाँ से बहती हुई आ रही है, ये इसमें आके गिर रही है, ये इसमें से आके गिर रही है, आके गिर रही है। तो ये जो बनी ये क्या कहलाएगी, ये वाली घाटियां क्या कहलाती हैं आपकी, हैंगिंग वैली कहलाती हैं। ठीक है, लटकती घाटी, और ये होगी आपकी मुख्य घाटी। इस प्रकार से इसको आप डायग्राम भी देख सकते हैं, बन जाता है। और क्योंकि जो मुख्य घाटी है उसने पहले से ही मेन वैली से जा रही थी, ज्यादा ज्यादा अपर्दन किया, तो यहाँ की हाइट कम हो गई, ऊंचाई कम हो गई, और जो दूसरी घाटी थी, दूसरी जो ट्रिब्यूटरी निकली वो आपकी ऊपर से लटकती हुई नीचे की तरफ आई, तो ये आपकी हैंगिंग वैली बना देती है। जो इसकी जो घाटी बन रही है इस ट्रिप आपकी दूसरी जो रिवर की, इसको क्या कह सकते हो आप, डिस्कॉर्डेंट ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी कहते हैं ट्रिब्यूटरी को। तो एक तरीके से सहायक नदी के रूप में ये आके गिरने लगती है।
और ये जो यहाँ पे गिर रहा है ये कहीं ना कहीं अगर जब इसमें से ग्लेशियर हट जाएगा तो यहाँ पर जलप्रपात भी बना सकते हैं, जलप्रपात ये बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और आता है जिसको हम बोल देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर थर्ड बन जाता है इसमें, उसे बोल देते हैं सर्क या हिम गहवर। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं सर्क और कोरी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दीज आर द होलो बेसिन्स कट इनटू ए माउंटेन रिज। ठीक है, होलो बेसिन्स कट इनटू ए माउंटेन रिज। It has steep slope on 3 sides and an open end on 1 side and a flat bottom. ठीक है, and when the ice melts, the surf may develop into a tarn lake, एक टार्न लेक की तरह भी ये बन जाती है। ठीक है, तो जो सिरप होते हैं इनको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक मैंने पहाड़ बनाया, ये इसका पहाड़ इस तरीके से अलग अलग भाग है पहाड़ का, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो ग्लेशियर बना ये एक इस तरीके से डिप्रेशन बना देगा। यहाँ इस वाले को हटा के इसको नीचे से बनाते हैं तो समझ आपको ये ऐसा बन गया थोड़ा सा। ठीक है, और जो तीसरी साइड है, तीसरी दिशा है, वहां से भी काटेगा, तो ये कुछ कुछ ऐसी बन जाती है। इसको यहाँ से इसने काट दिया, गहराई बना दी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा लगेगा जैसे कि कुर्सी बन गई है। कुर्सी होता है ना, कभी आपने कुर्सी देखी जो बेंत की कुर्सी होती है, तो ऐसी बनी हुई होती है। मैं इसको दूसरी दिशा से अगर बनाऊं तो ये इस दिशा की बनी हुई होगी, पाए लगे हुए होंगे इसमें, अच्छे से नहीं बनी कुर्सी। मेन ये समझना कि इस प्रकार से इसने काट दिया पर्वत की चोटी को, इस आकार से काटा, तो ये इस तरीके से 3 दिशा से कटेगा, तो ये जो कहलाएगा ये आपका सर्क कहलाएगा। ठीक है, इधर से भी काट दिया, उधर से भी काट दिया, और तीसरी दिशा से भी काटा हुआ है। ठीक है, तो ये कुर्सी नुमा आकार की जो एक निर्माण होता है उसे हम सर्क बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एक तो आपकी मेन वॉल होगी, ये जो लाइन है ये हो गई, ये क्या कहलाती है, हेड वॉल कहलाती है। ठीक है, शीर्ष दीवार बोल देते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, और नीचे इसका बेस हो गया, तलहटी हो गई, और यहाँ पर इस आपका जो ग्लेशियर है वो बहता हुआ नीचे की तरफ आगे जाता है। यहाँ से काट लेती है, इसको काट दिया इसने इस दिशा को, और यहाँ नीचे की तरफ ये बहती हुई जा रही है, तो ये सर्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो सर्क बन रहा है वो बन कैसे रहा है, इसका क्या कारण होता है कि जब उसकी निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है तो ये कहा जाता है कि शुरू में जो ढाल था, ये यहाँ से स्लोप है जो पूरा बना हुआ, इस स्लोप में शुरुआत में फ्रोस्ट वेजिंग होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्लोप पर फ्रोस्ट वेजिंग होती है, जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं तुषार चीरण।
ठीक है। तो इसकी वजह से जो हिमनद की जो तली होती है वहाँ पर छिद्र बन जाता है, छेद बन जाता है। और गर्मी के टाइम पे जब ग्लेशियर पिघलने लगता है तो उससे पानी जो बनता है वो इन छिद्रों से होकर नीचे की तरफ प्रवेश करता है। और जब रात में कम तापमान होता है तो ये पानी जो था वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है और फैलता है, जिस कारण से जो छेद बना था उसके ऊपर दबाव पड़ता है और उसकी वजह से फिर जो छिद्र बने हुए हैं वो टूट कर बड़े हो जाते हैं। और उनके टूटने की वजह से फिर जो चट्टानें निकलती हैं, टुकड़े निकलते हैं, वो हिमनदी जो है ग्लेशियर आगे से अपनी तरफ आगे लेके जाता है और धीरे धीरे फैलते जाते हैं, दूर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर यहाँ पर पूरा कटाव हो जाता है और इस प्रकार से सर्क का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इसके लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए कई सारे अलग अलग स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने इसका उदाहरण भी दिया है। ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको ये डायग्राम बनाया, तो ये इस तरीके से अगर मैं इसका एक और डायग्राम बनाऊं कि सपोज करो ये हेड बॉल है और यहाँ से ये आना शुरू हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ढाल आगे गया। ठीक है। इसकी शेप जो है थोड़ी सी हम बीच में से ऐसी कर सकते हैं। ऐसे बन गया। तो ये जो यहाँ पर बना, ये जो एक नई तरीके का निर्माण कर रहा है, क्योंकि बर्फ खिसकती हुई आगे आ रही है बीच में, स्लोप की वजह से, गति की वजह से बीच में से बर्फ चटक भी जाती है। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? बर्गशृंग। इंग्लिश में इसको बर्गशृंग ही बोलते हैं, बर्गशृंग। ये बर्गशृंग का निर्माण कर देता है। और ये जो बन गया सिरक, सर्क बन गया। ठीक है। सर्क, ये आपकी हेड वॉल है। और ये यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो है बर्फ का। ठीक है। यहाँ पर पूरी आपकी बर्फ जमी हुई है और ये फैलती हुई आगे की तरफ बहती जा रही है ऐसे। तो इस तरीके से इसका निर्माण होता है और इसमें बर्गशृंग भी बन जाती है। तो जो बर्गशृंग है, जो मैंने नाम दिया, इसकी थ्योरी भी दी है। थ्योरी भी क्या है इसकी? वो दी थी हमारी बर्गशृंग थ्योरी ऑफ जॉनसन, जॉनसन का बर्गशृंग का सिद्धांत। 1904 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी और इसके बारे में उन्होंने बताया था। एक है एफ जे गॉरवुड, गॉरवुड, उन्होंने भी एक इसके सिद्धांत दिया है कि कैसे सिल्क का निर्माण होता है, उसके बारे में उन्होंने थ्योरी दी हुई है। और एक होप्स हैं, होप्स ने भी इसके सिद्धांत के बारे में अपने विचार रखे हैं। ठीक है। तो ये सब है। तो इसमें मैंने अभी जैसे बताया था आपको कि जो ढाल बन जाता है, जो ढाल बन गया, तो ये ढाल क्या होता है, कई बार जब बर्फ निकल जाती है इसमें से, तो इसमें पानी भर जाता है बर्फ पिघलने के बाद। तो ये जो बर्फ पिघलने के बाद जो एक ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो एक पानी भर गया इसके अंदर, इसे क्या कहलाते हैं? टार्न बोलते हैं। पानी नहीं भरा, पानी भर गया इसके अंदर, तो टार्न लेक कहते हैं, टार्न झील बोल देते हैं इसको। ठीक है। टार्न झील बोल दीजिए इसको, दूसरे शब्दों में सर्ग झील भी बोल सकते हैं। सर्ग झील बोल देते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें इम्पोर्टेंट एक भूआकृति बनती है, तो वो जो भूआकृति बनती है उसे हम बोल देते हैं नुनाटक।
ठीक है, या एक और बना देता हूँ इसके अंदर, जिसे हम बोल देते हैं हॉर्न या ग्रीष्म हॉर्न बन जाता है। ठीक है, तो जो हॉर्न है, ये हॉर्न क्या है, इसका आकार भी लगभग वैसे ही रहता है, तो इसको हम बोल देते हैं रिच that acquires a horn shape when the glacial activity cuts it from more than two sides। ठीक है, तो इसको आप बनाएं तो ऐसा बना सकते हैं कि और यहाँ से ये ऐसे बनेगा, ठीक है, तो ये जो शेप बन गई, ये कैसे बनेगी, हॉर्न की तरह। भोंपू होता है ना, जो आइसक्रीम वाले पहले बजाते थे, कई बार ऑटो में भी लगाया था, पों पों इस तरीके से आवाज करता था हॉर्न, ये जो उसका बन गया, ये कैसा बन गया, हॉर्न के आकार का बन गया। ठीक है, और इसी को हम बोल देते हैं हॉर्न या गिरी श्रृंग। गिरी मतलब पर्वत, पर्वत का श्रृंग, गिरी श्रृंग। ठीक है, और ये जो बना है यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ढाल ऐसे कर दें, तो ये जो बन जाएगा, ये इसको कटा हो गया इसका, ये सर्क कहलाएगा, ये भी सर्क है। इसको ढालों को थोड़ा सा और नीचे की तरफ ऐसे घुमावदार अगर आप बना देंगे तो सर्क बन जाएगा। तो किसी पहाड़ी के जब पार्श्व भाग पर कई सर्क बन जाते हैं, एक नहीं कई बन गए, हर डायरेक्शन बन गए, और धीरे धीरे उनका अपघर्षण होता रहा, एब्रेशन होता रहा, और वो पीछे की तरफ खिसकते गए, तो जब खिसकते खिसकते एक जगह पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक जगह पे मिल जाते हैं, तो उनकी एक क्या होता है, चोटी का निर्माण हो जाता है, तो उस नुकीली चोटी को हॉर्न या गिरीश्रंग कहते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर आपको ऐसा ही एक आल्प्स माउंटेन जो है, वहां पर एक देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं मैटर्न हॉर्न। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है, जब एक पहाड़ी के दोनों ओर सर्क विकसित होकर मिल जाते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है, और इस तरह के मार्ग को क्या बोल देते हैं फिर फर्दर, कॉल या हिमानी दर्रा कहते हैं। और इस प्रकार से फिर कई सारे हिमानी दर्रा जो है हमें देखने को मिलते भी हैं। ठीक है, इसमें एक और जो आपको देखने को मिलेगा उदाहरण, वो हमें देखने को मिलता है एरीट के रूप में। ठीक है, तो जो एरीट हैं, वो एरीट भी लगभग इसी ही आकार के थोड़े थोड़े बनते हैं, और उनको क्या कह देते हैं आप, कि स्टीप साइडेड शार्प टिप समिट विद द ग्लेशियल एक्टिविटी कटिंग इनटू टू साइड। लगभग हॉर्न की तरह ही इनकी शेप होती है, और वो एरीट कहलाते हैं। ठीक है, एक होता है इसके अंदर और, जिसे बोल देते हैं हम क्रेग एंड टेल। श्रृंग एवं पुच्छ। ठीक है, तो ये कैसे बन जाता है, जब किसी हिम प्रभावित स्थल भाग में बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग ऊपर गांठ के रूप में निकला रहता है,
तो जिस ओर से हिमनद आता है उस ओर प्लग या बेसाल्ट के उठे भाग पर स्थित जो भी मुलायम मिट्टी का हिमनद द्वारा अपर्दन हो जाता है और जो ढाल है वो उबड़ खाबड़ होकर खड़ा हो जाता है। तो इस ढाल से जब बेसाल्ट के उठे हुए भाग को या प्लग को पार करके दूसरी ओर सरकने लगता है तो प्लग के साथ संलग्न जो भी दूसरी ओर मुलायम शैल है उसका कम अपर्दन होता है। और क्योंकि हिमनद द्वारा यहाँ पर शैल को संरक्षण प्राप्त होता है तो इस कारण दूसरी ओर का ढाल होता है वो हल्का और मंद हो जाता है और ये हल्का ढाल दूर तक विस्तृत रहता है। तो ये कैसा देखने में लगता है? ये ऐसा देखने लगता है कि ये एक ग्रीवा है या श्रृंग है, उसके पीछे एक लंबी सी पूंछ निकली हुई है। और इस प्रकार के जो बेसाल्ट या प्लग वाले ऊंचे भाग को श्रृंग कह देते हैं और पीछे वाले भाग को हम पूंछ कह देते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हिमानी किस तरफ से बह रही है? इस तरफ से आ रही है, फ्लो डायरेक्शन। तो ये जो चट्टानें थी, इन चट्टानों को तो हिमानी ने काटने की कोशिश की, काटा, फिर ये इसके ऊपर चढ़ गई। ठीक है, इस क्षेत्र में इसके ऊपर आ गई यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे फ्लो करती जा रही है। इसको हम जो है थोड़ा सा ऊंचा बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अंदर बेसाल्ट वाले भाग हैं। तो ये जो भाग होगा ये आपकी पूंछ कहलाएगी, जिसे हम टेल बोलते हैं, और ये कहलाएगा भाग क्रैग, जिसे हम श्रृंग बोलेंगे, श्रृंग। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो डायग्राम हो गया ये क्या कहलाएगा आपका? क्रैग एंड टेल, ये फिगर हो गया। इसी के तरह का एक और लैंडफॉर्म डेवलप होता है। तो उस लैंडफॉर्म को उसको हम कह देते हैं रॉक माउंटेन। ठीक है, हिंदी में इसको कह देते हैं भेड़ पीठ या रोश मुटोने। तो ये जो रोश मुटोने हैं ये हिमानीगत क्षेत्रों में कुछ अपर्दित शिलाएं होती हैं जिनको हिमनदी ने जो है अपर्दन कर दिया, और दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वो मानो कोमल ऊन की वाली भेड़ें जो हैं वो बैठी हुई हों। एक स्कॉलर थे, उनका नाम था डी शॉसर, डी सॉसर। ठीक है, 1804 में इन्होंने नाम दिया था कि रोश मुटेने, इनका नाम दिया था। हिंदी में इसको आप या कह सकते हैं मेष शिला या भेड़ पीठ शैल। तो जब हिम नदी आगे बढ़ती है तो उसके मार्ग में कभी कभी तो कठोर चट्टानें आ जाती हैं, उनके चट्टानों के टीले भी पड़ जाते हैं, और ये टीले जो हैं हिम नदी के आगे के मार्ग को अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब जो हिम नदी है वो अपने अपघर्षण द्वारा, एब्लेशन के थ्रू, वो इन टीलों को अपर्दित करके अपना रास्ता बना लेता है। तो इन टीलों पर जिस ओर से हिमनद बढ़ते हैं उस ओर तो अपघर्षण का होता है, और उसकी वजह से जो टीले का भाग है वो घर्षण होकर चिकना हो जाता है और हल्के ढाल वाला हो जाता है। तो इसकी वजह से भी जो हल्का ढाल हो जाता है तो ढाल के सहारे धीरे धीरे हिमनदी अपने आसानी से टीले पे चढ़ जाती है। और इसका प्रमुख कारण भी यह है कि उतरते समय जो हिम है
और उसके जो शिलाखंड हैं उनका संपर्क होने से शेल बहुत कम हो जाता है, उसको काट देती है, छोटा कर देती है। तो जो दूसरा ढाल है उस पर उत्पाटन द्वारा खरोंचें पड़ जाती हैं और तीव्र ढाल जो है वो उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो चट्टानी टीले का हिमनद के सामने वाला भाग है वो तो मंद ढाल वाला होगा, और जो दूसरा वाला भाग है वो तीव्र भाग होगा। और इस प्रकार से फिर इस टीले को हम भेड़ पीठ वाला शेल कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके रोशमोटो ने क्रेग एंड टेल के अपोजिट वे में बनता है। इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ से ग्लेशियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये जो है आपका मंद ढाल है, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरीके से नीचे आएगा, और ये हो गई आपकी तीव्र ढाल, ठीक है। इसको हम ली साइड भी बोल देते हैं। और ये आपका ऑनसेट या स्टोस साइड कहलाता है। तो ये जो बन जाता है, ये क्या बन जाता है, रोस मोटोन, ठीक है। इस प्रकार से इनका निर्माण हो गया। और अंत में एक और इम्पोर्टेंट इसका फिगर है जिसे हम बोल देते हैं फ्योर्ड। फ्योर्ड बड़े खूबसूरत होते हैं, काफी टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, और ये अभी हमें कई जगहों पे देखने को मिलते हैं। तो जो फ्योर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर स्टीप साइडेड नैरो एंट्रेंस लाइक फीचर्स एट द कोस्ट। समुद्र के पास जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। वेयर द स्ट्रीम मीट्स द कोस्ट। Fjords are common in Norway, Greenland, न्यूजीलैंड, इस जगहों पे देखने को मिलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड ये सारे क्या हैं, ध्रुव के पास वाले देश हैं, है ना। तो इसलिए ध्रुव के पास है, तो ये कौन से हैं, ये सब है हाई लैटिट्यूड के आसपास के जो क्षेत्र है। तो हाई लैटिट्यूड के आसपास जो भी जलमग्न हिमानीकृत घाटियां हैं, ठीक है, इसको हिंदी में लिख दूं तो उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो फ्योर्ड क्या है, एक प्रकार का तट है, ठीक है, या किनारा होता है। और ये आपको दोनों गोलार्धों पे देखने को मिला, हाई लैटिट्यूड नियर पोल्स, दोनों गोलार्ध पे देखने को मिलेंगे। ग्रीनलैंड, नॉर्वे,
न्यूजीलैंड, अलास्का, चिली, ब्रिटिश कोलंबिया, लेब्राडोर, ये सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको फ्योर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो फ्योर्ड जो है गहरे जल के सागरीय भाग होते हैं। ठीक है, फ्योर्ड गहरे जल के सागरीय भाग होते हैं। ठीक है, इनकी दीवारें खड़ी होती हैं, खड़ी ढाल वाली होती हैं, और इनमें अनेक सहायक लटकती घाटियां भी देखने को मिलती हैं। और फ्योर्ड किनारे के पास जहाँ स्थल की ओर वहाँ ज्यादा गहरा होता है, और सागर की ओर कुछ दूर जाने पर ही उथला हो जाता है, और फिर बाद में फिर सागर पर पुनः गहरा हो जाता है। तो इस तरीके के फ्योर्ड और सागर के बीच में एक उथला भाग होता है, जिसको हम फ्योर्ड का चौखटा बोलते हैं, है ना, एंट्रेंस ऑफ द फ्योर्ड। और कुछ विद्वानों का मानना भी यह है कि जो चौखटा जलमग्न है अंतिम हिमोड़ का ही रूप होता है, कि पुराने टाइम में यहाँ पर तक एक हिमोड़ हमें देखने को मिलता था। तो यदि किसी कारण से सागर तल इतना नीचा हो जाए कि फ्योर्ड का एक चौखटा सागर तल के ऊपर तक आ जाए, तो फ्योर्ड का सागर से संपर्क खत्म हो जाएगा, कि बीच में वो जमीन आ जाएगी। तो इस बारे में फिर काफी ज्यादा लोगों का अपना अपना मत भी है। तो इस प्रकार से लेकिन फ्योर्ड का निर्माण होता है। ठीक है, ये इस तरीके से घाटियां बनी हुई हैं, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ सारा ओशन वाटर है, यहाँ भी पानी नीचे की तरफ अंदर जाता है, आप देख सकते हैं भरा हुआ रहेगा। और ऐसी सीधी खड़ी हुई दीवारें जो हैं वो इसकी किसकी हैं, ग्लेशियर्स की, सारा ग्लेशियर समुद्र के बाद इस तरीके से इनका निर्माण कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका बी पॉइंट है, वो है ग्लेशियर डिपोजिशनल, या इसको ट्रांसपोर्टेशनल डिपोजिशन दोनों कर देते हैं। लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो जो ग्लेशियर से ज्यादा परिवहन है, तो उसमें परिवहन में क्या करेगा ग्लेशियर, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसके रास्ते में जो भी शिलाखंड हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, रेत के कण हैं, मिट्टी हैं, सब सम्मिलित हो जाते हैं, और इन सभी पदार्थों के सम्मिलित रूप को हम ग्लेशियल ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, जो भी इसके साथ पदार्थ मिले, कंकड़ पत्थर सब जो मिलके क्या बना दें, ग्लेशियल ड्रिफ्ट। ठीक है, तो हिमोड़ का जो प्रयोग है हिमानी के निक्षेप के लिए किया गया है, और इनका कुछ भाग जो है वो हिमनद के पार्श्व भागों से होकर, उसकी तली से होकर कुछ उसके आगे के भागों तक स्थानांतरित होता रहता है, और हिमनद के जो पार्श्व के सहारे हिमोड़ खासकर पंक्तिबद्ध रूप में चलते जाते हैं। तो आगे बढ़ता हुआ जो हिमनद होता है वो अपने आगे वाले भाग को कुछ पदार्थों को ठेलकर आगे बढ़ाता जाता है, और इस प्रकार से ये सारा जो उसके साथ मलबा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और हिमनद के द्वारा जो भी जमा किए पदार्थ हैं उनमें ग्लेशियल ड्रिफ्ट हमें देखती हैं, हिमोड़ देखने को मिलते हैं। हिमोड़ मतलब क्या हो गया, बोलते हैं मोरेन। ठीक है, तो हिमानी द्वारा जो भी जमा किए गए आवर्तीकृत तलछट हैं उनको सम्मिलित रूप से हम टिल कहते हैं। इकट्ठा जमा करके जो सामान इकट्ठा बना लिया इसने, वो क्या कहलाते हैं, टिल कहलाते हैं। अभी हम उनको आगे देखेंगे। ठीक है, और हिमानी द्वारा जो भी जमा किए तलछट हैं उसको सम्मिलित रूप से हम टिल कहते हैं, और टिल में क्या होता है, कणों के आकार के अनुसार उनके पदार्थों को हम श्रेणीकरण नहीं कह सकते, असोर्ट नहीं कर सकते उनको, क्योंकि जितने भी छोटे बड़े सभी प्रकार के कण हैं एक साथ निश्चित रूप से निक्षेपित होते रहते हैं, एक जगह पे डिपोजिट होंगे। और हिम ड्रिफ्ट वास्तव में क्या है, हिम नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को कहते हैं हम हिम ड्रिफ्ट। तो टिल जो है वो भी हिम ड्रिफ्ट का जो है एक रूप होता है, और हिमानी जमाव जो है, जो भी उसका मलबा है, उसको फिर हम तीन भागों में बांट देते हैं। एक होता है अंतर हिमानी मलबा, बाह्य हिमानी मलबा, और एक तीसरा होता है उप हिमानी मलबा। तो जो अंतर हिमानी मलबा है वो तो हिमनद के साथ मिलकर चलता है, जो बाह्य हिमानी मलबा है वो हिमनद के ऊपरी सतह पर रहता है, और एक होता है उप हिमानी मलबा। ठीक है,
तो वो जो है हिमनद की तली में रहता है। इस प्रकार से ये सारे मोरेन्स जो है वो काम करते हैं। तो इसमें हम अब देखते हैं मेन जो है आपका डिपोजिशनल व लैंडफॉर्म्स। तो डिपोजिशनल के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? पहला आता है, उसे बोल देते हैं हम मोर या मोरेन्स। ठीक है, तो जो मोरेन्स हैं, हिमोड है, वो क्या है? जनरल टर्म में आप इसको क्या बोल सकते हैं हिमोड को? कि हिमनदी जो है वो अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों को लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है, और जब इन पदार्थों को हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता तो वो उनका निक्षेप कर देता है। तो हिमनद द्वारा जो पदार्थों के निक्षेप को हिमोड़ बोलते हैं। ठीक है, हिमनद हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, जनरल टर्म applied to rock fragments, gravel, sand, etc. carried by a glacier is known as moraine। ठीक है, तो यही आपका मोरेन कहलाता है। सो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, मोरेन्स को फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक होता है इसके अंदर जो मोरेन के टाइप है, टाइप ऑफ मोरेन्स। एक होता है अंतिम या अंतस्थ हिमोर, जिसे हम बोल देंगे टर्मिनल मोरेन्स। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है? पार्श्विक हिमोर, लेटरल मोरेन्स, और तीसरा होता है मध्यस्थ हिमोर, मीडियल मोरेन्स। ठीक है, और इसका एक और भाग इसका बन जाता है जिसे हम बोल देते हैं तलीय या तलस्थ हिमोर। ग्राउंड मोरेन्स। ठीक है, तो जो ये अंतिम है, अंतिम या अंतस्थ हिमोर है, यही कब बनता है? जब ग्लेशियर का जो एंड वाला जो पार्ट है, अंतिम भाग जो है वो पिघल जाता है, तो हिमनद का आगे बढ़ना रुक जाता है। तो यदि हिमनद को आगे बढ़ना है और हिम का जो पिघलना है वो एक दोनों समान गति से होता रहता है, तो हिमनद की गति रुक जाती है।
इसकी वजह से फिर जो हिमनद के साथ लाए गए जितने भी पदार्थ हैं वो उसके आगे वाले भाग में इकट्ठे हो जाते हैं, और उसकी कारण से फिर जो है एक, जैसे घोड़े की नाल होती है ना, ऑक्सबो जो जैसे हमने देखा था, घोड़े की नाल का अंदर चंद्राकार का एक कटक का निर्माण हो जाता है, तो जिसका हिमनद घाटी की ओर ढाल जो है वो अवतल होता है। और इस प्रकार से हिमनद के जो आगे वाले भाग पर जो टिल के निक्षेपण से बने हुए स्थल रूपों को हम क्या बोल देते हैं, अंतिम हिमाड़ या अंतस्थ हिमोड़ बोलते हैं। अनियमित अंतिम हिमोड़ वाले जो भाग हैं उनमें कई प्रकार के आपको टीले देखने को मिलेंगे, बेसिन देखने को मिलेंगे जो बन जाते हैं। तो और इस प्रकार से इनको हम क्या बोल देते हैं, नॉब एंड बेसिन टोपोग्राफी, नाब और बेसिन स्थलाकृति प्रदेश भी कह देते हैं। दूसरा जो होता है पार्श्विक हिमोड़ होता है। ये हिमनद जो है ग्लेशियर है उसके अधिकांश भाग जो है जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, परिवहन होता रहता है उनका, तो वो अपने पार्श्व भागों में या किनारे के सहारों से आगे बढ़ता रहता है। तो जब हिमनद की गति आगे चल रही है, बढ़ रही है, तो हिमनद की हिम जो है, स्नो है, वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाती है। तो इसकी वजह से जो ग्लेशियर है वो नैरो हो जाता है, संकुचित हो जाता है, और संकुचित होने की वजह से फिर अपने किनारों से वो हट जाता है। तो जो जब अपने साइड से हट गया तो उसके साइड में क्या रह गया, साइड में जो भी अपने साथ कंकड़ पत्थर जो टिल लेके आया था, निक्षेप लेके आया था, वो वहीं छूट जाता है। तो इस प्रकार से फिर साइड में, इस ग्लेशियर के दोनों साइड में टिल बन जाते हैं, जो कि लंबे लंबे फैले हुए से कटक के रूप में, रिज कटक होता है, रिज उठा हुआ भाग थोड़ा सा, उसके रूप में वहां जमा हो जाते हैं। तो उनको हम पार्श्विक हिमोड़ बोल देते हैं। ये जो पार्श्विक हिमोड़ होंगे ये आपको थोड़े संकरे देखने को मिलेंगे, थोड़े लंबे होंगे और थोड़े खड़े ढाल वाले होते हैं। ठीक है। और जो हिमनदी है, जो घाटी, जिस घाटी में वो ग्लेशियर बह रहा है, उसकी जो साइड वाली दीवार है उसके समानांतर ये मतलब डिपोजिट हो जाते हैं, और काफी मीटर ऊंचाई तक ये देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है। और जो तीसरा वाला है जिसे हम बोल देते हैं मध्यस्थ हिमोड़, ये जब दो हिमनद आपस में आके मिले, तो दोनों आपस में मिल गए, तो उनका जो सेंटर वाला पार्ट है, भीतरी जो पार्श्विक हिमोड़ है, वो मिल गया। तो इस प्रकार से उसको हम, जो बीच में सामान, जो उसका मटेरियल छूटेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, मध्यवर्ती या मध्यस्थ हिमोड़। और इस वाले जो मध्यस्थ हिमोड़ है, इसको आपको पहचानना होगा तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ पर ये प्रॉपरली डेवलप हो गए, तो वहां पर क्या होगा, एक घाटी के अंदर वैली में बीच में उठे हुए एक रिज के रूप में देखने को मिलते हैं। तो उसको, उसके हिसाब से फिर हम उनको पहचान पाते हैं। ठीक है। और एक होता है तलीय हिमोड़, जिसे ग्राउंड मोरेन बोलते हैं, या तलीय तलस्थ हिमोड़ी बोल देते हैं। तो जो ग्लेशियर के बेस पे, तली पे एक साथ इकट्ठा हो गया जो भी टिल हो गया, तो उसको हम तलीय हिमोड़ कह देंगे। तलस्थ जो हिमोड़ है, तलीय हिमोड़ जो है उसमें रेत के महीन कण होते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ जो रॉक्स स्ट्रक्चर्स उनको तोड़ा है, तो उनके रॉक्स के बड़े बड़े पार्ट्स के टुकड़े भी देखने को मिलते हैं। तो इस, जो भी ये टुकड़े हैं, ये कैसे आए वो तो हम अभी बात कर चुके थे। तो जो तलस्थ हिमोड़ है, ठीक है, ग्राउंड मोरेन जो है, उसकी संरचना बिना किसी नियम और पद्धति की होती है बस। और छोटे छोटे कण, जब बड़े छोटे बड़े कण सबसे एक साथ मिलकर मिश्रित रूप से जब मिलते हैं, तो वो हमारा मोरेन कहलाता है। ठीक है। आज टाइम हो गया काफी, तो अभी इसका कुछ पार्ट रह गया है, कुछ और है, उनको थोड़ा सा डिटेल में समझाना होगा आपको, तो उसको फिर हम आगे पढ़ेंगे। मैं आज उसका नाम लिख देता हूँ, उसको हम आगे शुरू करेंगे बाद में। ठीक है। जिसमें कि ड्रमलिन्स हो गया, एस्कर्स हो गए, ठीक है, कैटल होल्स हैं, और कैम्पट्रेसेस हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो देखने को मिलते हैं। ये इनको मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। और फिर ग्लेशियर के कुछ जो मॉर्फिक साइकिल है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे कि रिवर की ग्लेशियल साइकिल होती है, इस तरीके से इनकी भी होती है। और फिर आगे हम विंड से जो नया डेवलपमेंट होता है नए लैंडफॉर्म्स का, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से आपका लैंडफॉर्म का चैप्टर पूरा हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि आप जो प्रॉपर हिंदी में पढ़ाते हैं तो एटलीस्ट कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दिया करेंगे। तो आज जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश प्रॉपर दोनों यूज की थी, तो इसी बट प्रकार से फिर कुछ प्लेसेस पे ना नहीं समझ पे आया था, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, लाइक जैसे आप क्रिक समझा रहे थे हाँ
तो उसमें कुछ वर्ड्स आपने ऐसे यूज किए थे जो मुझे समझ में नहीं आए, दैट्स हिंदी व्हाई में आई एम टोल्ड इन हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी में। अच्छा, जो हिंदी में आपने आपको बोले, समझ। हाँ, जो अच्छा। आपने वर्ड्स यूज किए थे, स्पेसिफिक हम्म। वर्ड्स, उनकी मीनिंग मुझे नहीं समझ में आई थी, अच्छा, दैट्स व्हाई आई एम टोल्डिंग ये यू। एक बार आप बता पाओगे कहाँ पर था, कौन से वाले टॉपिक पे था ये इसमें? सर क्रेक वाले में, जब आपने टाइप ऑफ ग्लेशियर्स पढ़ा रहे थे तब। अच्छा, एक मिनट मुझे देखना चाहिए। अच्छा, ये जो बताए थे आपको, पीटमाउंट ग्लेशियर, माउंटेन ग्लेशियर्स हैं। यस सर। हम्म, ठीक है। तो ये मतलब आप मतलब है कि मैं थोड़ा सामान्य हिंदी के शब्द भी यूज करूँ, हाँ? यस सर। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है ना कि थोड़े से साइंटिफिक टर्म्स हैं, जो आप इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा ही साइंटिफिक टर्म्स होते हैं, तो उन टर्म्स को फिर हम अलग हिंदी में भी अगर बोलें तो फिर एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि और भी जो सामान्य हो सके शब्द हो सकते हैं उनको उपयोग करें। ठीक है। कोशिश ओके सर। करेंगे कि आपको प्रॉपर हिंदी, और आज मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि आपको जितने भी शब्द मैंने बताए हैं सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश की बताने की, इसीलिए जी काफी आज सर। हिंदी इंग्लिश में लिखा भी है। और भी अगर किसी का इस तरीके से मुश्किल लगा करे तो आप पीछे पूछ भी सकते हैं, ठीक है? जब ओके सर। प्रैक्टिस चल रहा था आप तब भी पूछ लेंगे तो मैं तभी आपको बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है? ओके सर। आशा है कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें ठीक से, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।